हेलो हाय नमस्कार। मैं परम चौधरी एन अनबायस्ड मैथमेटिशियन आप सबका अनबायस्ड मैथ्स 10 यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूं PYQ सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 ऑफ एनसीईआरटी। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट करती रहती है। तो हम इस पीवाईक्यू सीरीज के पार्ट 2 में 40 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 हम 4 सब पार्ट ए बी सी डी में कंप्लीट करेंगे, हैविंग 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन ईच सब पार्ट। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बाय सीबीएसई बोर्ड के सॉल्यूशन एक ट्रिकी अप्रोच के साथ डिस्कस किए। और पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 1 देखने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समवेयर इन वीडियो, इफ यू गेट impressed by my tricky approach to solve any question, please hit that like and subscribe बटन। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन रीड कीजिए। फाइंड ए बी एंड सी सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी। ए 7 बी 23 सी। सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले देखिए, ए 7 बी 23 सी, ये सारे नंबर्स आपके एपी में है। एपी में है तो इट मीन्स दैट इनका कॉमन डिफरेंस हमारा क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस ए कोमा 7 कोमा बी 23 सी आर इन एपी common difference must be same. 7 minus a, b minus 7, 23 minus b, c minus 23, c minus 23. This should be same because common difference आपका same मिलेगा. And now we will solve for b. सबसे पहले हम क्या करेंगे? b से b को solve करेंगे from here. b and minus b. तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे? b plus b should be equal to 23 plus 7, 23 plus 7 to be equal to 30, and we can say that b must be equal to 15. b must be equal to 15. एंड जैसे ही आपके पास b की वैल्यू 15 आएगी यहाँ पे, हम नाउ वी विल सोल्व फॉर a आल्सो एंड सोल्व फॉर c आल्सो. एंड आफ्टर दिस स्टेप व्हाट वी विल राइट? now 7 minus a must be equal to b minus 7. Now put the value of b, that is 15 here. 7 minus a, b is 15. 15 minus 7, you will get 7 minus a is equal to 8, and therefore we can say that a यहाँ पे जाएगा 7 minus 1, 8 is minus 1. So we can say that a must be equal to minus 1. a must be equal to minus 1. From here you will get the value of a also. Now again we will solve for c. 23 minus b must be equal to c minus 23. c minus 23. Put the value of b 15 here, that is 23 minus 15. 23 minus 15 is equal to c minus 23. You will get 8 equal to c minus 23, and c must be equal to
8 plus 23, that is 31. That is 31. So we can say that the value of A, B and C, therefore A is equal to -1, B is equal to 15 and C should be equal to 31. So this is very short answer question asked in 2021 and 22 session. Now next question on the screen. For an AP A1, A2, A3, if A4 by A7 is equal to 2 by 3, find the value of A6 divided by A8. हमें AP दी गई है A1, A2, A3. हमें पता है कि A1, A2, A3 आर इन द AP, A4, A7. तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे. लेट फर्स्ट टर्म of AP, B, A and common difference B small d. So A4 by A7 should be equal to 2 by 3. We can write A4 as A plus n minus 1, that is 4 minus 1 into D divided by A7. A7 को हम कैसे लिख सकते हैं, A plus 7 minus 1 into D divided by 2 by 3. We can write A plus 3D divide by A plus 6D should be equal to 2 by 3. When we cross multiply, what you will get, 3A plus 9D should be equal to 2A plus 2 6 are 12D. 2A plus 12D. Here 3A minus 2A, you will left behind A, should be equal to 12D minus 9D, that is 3D. Now you can say that A should be equal to 3D. Now हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड A6 by A8. फाइंड A6 by A8. नाउ हम लिखेंगे A6 by A8 should be equal to, A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A plus 6 minus 1 into D divided by A8 can be written as A plus 8 minus 1 into D should be equal to A plus 6D A plus 5D divided by A plus 7D. Now replace A with 3D. Now replace A with 3D. 3D plus 5D divided by 3D plus 7D, and ultimately you will get 8D by 10D. D cancel out with D and it will become 4 by 5. 4 by 5 is your correct answer. 4 by 5 is your correct answer. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि given AP having the first term is small a and common difference is D, and now we will put the value of A4 and A7, like an term क्या होती है, A plus n minus 1 into D. Then A4 get replaced with A plus 3D
a7 get replaced with a plus 6d. When we solve it, you will get a equivalent to 3d. And the questioner asks you a6 by 8, a6 get replaced with a plus 5d, a8 get replaced with a plus 7d. Now a and a is get replaced with 3d. Now 3d plus 5d and 3d plus 7d, you will get 8d by 10d. The answer goes to 4:5. 4:5 should be the correct answer. Now next question, question number 3. Question number 3 ask in 2021-22 session, find the number of terms of AP, find the number of terms of AP 293, 285, 277, 53. गिवन एपी इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. जो एपी आपको क्वेश्चन में दी गई है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. देखिए 293 से स्टार्ट होकर 53 पे खत्म हो रही है. मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको कोई एपी गिवन है. हमसे पूछा गया इसकी नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट 53, जो आपकी ये लास्ट में 53 दी गई है, आप इसको मान लो दिस इज योर nth टर्म, दिस इज योर nth टर्म. लेट 53 be the nth term of given AP, of given AP having first term लिख लीजिए, हैविंग फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 293 एंड कॉमन डिफरेंस डी शुड बी इक्वल टू 285 minus 293 that should be equal to -8. तो हमसे अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. अगर हम n की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगा. n मान लो कि आपकी 70th टर्म है, तो हम बोल देंगे सीरीज के अंदर 70 टर्म्स है, तो n की वैल्यू हम निकाल लेंगे. वी हैव nth टर्म, an शुड बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. हम फॉर्मूला लगा देंगे nth टर्म का. an nth टर्म कौन है आपकी, दैट इज 53 जो हमने लेट की है. 53 शुड बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी. a इज व्हाट 293 प्लस n माइनस 1 जो हमें n की वैल्यू निकालनी है, टू कॉमन डिफरेंस इज -8. कॉमन डिफरेंस इज -8. हम नाउ सोल्व फॉर n. 53 इक्वल टू 293 -8 इंटू n -8n माइनस प्लस 8. नाउ 8n आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा, इट विल बिकम पॉजिटिव 8n. यहाँ पे क्या आएगा 293 -53 प्लस 8. देखिए 293 53 0 and 4 240 plus 8 248. So we can say that 8n should be equal to 248 and n comes out to be 8 3s 8 1 ja, so it will become 31. So we can say that number of terms are 31. Find the number of terms in AP. So total number of terms in given AP should be equal to 31. 31 is your right answer. Now next question, काफी इजी क्वेश्चन था ये आपका, एक ही फॉर्मूला बेस्ड पे था. an should be equal to a plus n minus 1 into d. A good question. Now next question,
Question number 4. For what value of n? For what value of n are the n terms of AP 975 and 1512 9 the same? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लीजिए कि किस वैल्यू के लिए, एन की किस वैल्यू के लिए आपके पास दो एपी दी गई है, एपी फर्स्ट एंड एपी सेकंड। फर्स्ट एपी की nth टर्म और सेकंड एपी की nth टर्म, कौन सी वो nth टर्म होगी जो सेम होगी, जो आपकी सेम होगी। मीन्स मैं बोलता हूं कि इस एपी की मान लो आपकी 12th टर्म, इस एपी की कौन सी 12th टर्म, और इस एपी की भी वो 12th टर्म क्या होंगी, सेम होंगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, कि इस एपी की कौन सी nth टर्म उस एपी के nth टर्म के इक्वल होंगी। ए वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ अप्रोच को समझिए, हमारे पास में दो एपी है, वी हैव टू एपीज। कंसीडर कंसीडर फर्स्ट एपी, consider first AP, that is 975 975. Here A is equal to that is first term, that is 9, and common difference D should be equal to 7 minus 9, that is minus 2, and nth term of first AP is nth term of first AP, लिख लीजिए यहाँ पे nth term of first AP, that is a nth, a प्लस में n माइनस वन डी, a प्लस में n minus 1 into d, it comes out to be what? A is your 9, n is your n minus 1 into d, d is what? Minus 2. We can say that it will become 9 minus 2n minus minus plus 2, it will become 11 minus 2n. So this is your nth term of first AP, nth term of first AP। ये रिजल्ट हम थोड़ी देर में यूज करेंगे। नाउ कम टू द सेकंड। नाउ कंसीडर क्वेश्चन आ रहा है समझ में आपको। हमने कंसीडर किया कि फर्स्ट एपी जो है हमारे पास 975 है, इसमें हमने अपनी nth टर्म निकाल ली इसकी, ठीक है। नाउ वी विल कंसीडर द सेकंड एपी, that is 1512 9, second AP, that is 1512 9। here first term is first term is a dash, let कर लो, फर्स्ट टर्म इज a dash, that is 15, क्योंकि आपकी सेकंड एपी है। अब जरूरी नहीं सेकंड एपी की और आपकी फर्स्ट टर्म आपकी सेम हो, तो फर्स्ट टर्म a डैश एंड कॉमन डिफरेंस d डैश, that is 12 minus 15 should be equal to minus 3, and nth term be, let nth term of second AP be a and dash। तो a and dash का हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू में d डैश, फॉर्मूला लगा देंगे हम, दैट इज 15 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d डैश इज माइनस 3, सोल्व फॉर a nth डैश। 15 देखिए 15 माइनस 1 और माइनस 3, इट विल बिकम प्लस 3, 18
और -3 × n -3n इट विल बिकम योर an डैश। ये आपका क्या बन जाएगा, an डैश बन जाएगा। नाउ रीड द क्वेश्चन, नाउ रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth term of AP first and AP second are same. Now we will write according to question, according to question, according to question nth term of, according to question nth term of first AP, that is an, nth term of first AP should be equal to nth term of second AP. An should be equal to an dash. Now 11 minus 2n, 11 minus 2n should be equal to 18 minus 3n, 18 minus 3n. Now solve for n. यहाँ पे आपका 3n नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो वी कैन राइट 3n minus 2n should be equal to 18. 11 minus 11 you will get n must be equal to 18 minus 11 is 7. So n is your 7. This is correct answer. For what value of n? 7 term means हम कह सकते हैं कि 7th term of first AP should be equal to 7th term of second AP. A good question that was asked in session 2021 and 22. Very good question. Now question number next, that is question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है आपको 7 times the 7 terms of AP is equal to 5 times the 5th term. Find the value of 12th. Find the value of 12th term. मीन्स हमें कुछ भी नहीं गिवन, हमें सिर्फ ये बोला गया है कि किसी भी AP की 7वीं टर्म 7 times the 7 term should be equal to 5 times the 5th term. Now after using this statement you have to find out the value of 12th term. देखिए क्या अप्रोच रहेगी हमारी क्वेश्चन को करने की। हम लेट कर लेंगे, सबसे पहले एपी को लेट कर लीजिए बस, लेट एपी हैविंग फर्स्ट टर्म बी ए and common difference be small d, small d. So according to question, according to question according to question 7 times the 7 term, that is A7 should be equal to 5 times the 5th term A5. Now we will replace A7 into में A plus 7 minus 1 into D should be equal to 5 times द फिफ्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 दैट इज 5 minus 1 इंटू डी। अब सोल्व कर लीजिए, इट विल बिकम 7 इंटू में a प्लस 6d एंड 5 इंटू में a प्लस 4d, a प्लस 4d। क्वेश्चन आ रहा है आपको समझ में। नाउ 7a प्लस 42d should be equal to 5a plus 20d plus 20d। नाउ 7a एंड 5a माइनस करेंगे, हमारे पास वी विल लेफ्ट विद 2a शुड बी इक्वल टू 20d minus 40d, 20d minus
40d, that should be equal to minus 22d, minus 22d, minus 22d. We can say that 2a is equal to minus 22d, so a must be equal to minus 11d, a इक्वल टू माइनस 11d. तो ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं, a शुड बी इक्वल टू माइनस 11d. ये रिजल्ट आ गया हमारे पास में जो क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट थी. नाउ क्वेश्चन में हमें से पूछा गया है कि 12th टर्म बताइए. तो a 12th, तो a 12th शुड बी इक्वल टू a प्लस 12 minus 1 into d. It will become a plus 11d. Now replace a with, a को किससे रिप्लेस कर देंगे हम? a get replaced with minus 11d, minus 11d से हम इसको रिप्लेस कर देंगे and you will get what? Minus 11d and plus 11d, that is 0. So 12th term must be 0 is your right answer. 12th term आपकी क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी. A good question again, 2021-22 session. Now next question. Question number 6. Question number 6. Which term of AP is 0? तो काफी इजी क्वेश्चन है. Let nth term of AP is 0, तो nth टर्म है तो हम सबसे पहले लिख लेंगे गिवन के आपको a कितना गिवन है क्वेश्चन में 27 एंड कॉमन डिफरेंस इज 24 माइनस 27, दैट इज इक्वल टू -3 एंड nth टर्म आप खुद बोल रहे हो कि वो 0 होती है तो हम लिखेंगे a nth शुड बी इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d. nth टर्म क्या आपकी 0 है, a आपका 27 है, n की वैल्यू हमें निकालनी है भाई कौन सी टर्म 0 मिलेगी एंड कॉमन डिफरेंस इज -3. नाउ सोल्व फॉर द वैल्यू ऑफ n, दैट इज 0, 27 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3, माइनस माइनस प्लस 3, -3 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, it will become 3n, 27 plus 3 that is 30 and n comes out to be 10, तो हम बोल सकते हैं 10 term of the given AP is 0. 10 term of the given AP is 0. This is your right answer. Now next question number 7 on the screen. In an AP, if common difference is -7, n is 7, nth term is 4, then find the value of a. A very easy question again, a very easy question. हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? d की वैल्यू -4 है, n आपके पास में 7 है और an के आपके पास में 4 है. काफी इजी क्वेश्चन. अगेन वी विल पुट द फॉर्मूला an a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी. अब an हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? an हमें गिवन है दैट इज 4. फर्स्ट टर्म वी हैव टू फाइंड आउट एंड प्लस में n इज 7 माइनस 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस इज -4. बस आपको ये सोल्व करना है. 4 इक्वल टू a प्लस में दिस इज 6 minus 4 minus 24. A very easy question. That is 4 plus 24. So therefore we can write down a should be equal to 28. A is equal to 28. Question come in 2020 and 21 session. Now next question. That is question number 8. Show that a minus b whole square, a square plus b square and a plus b whole square are in AP. We have to prove
दीज थ्री टर्म्स आर इन एपी, हमें ये प्रूफ करना है। और किसी भी तीन टर्म्स को एपी में प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस और इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो दोनों का सेम आ जाता तो हम बोल सकते हैं कि दीज थ्री टर्म्स आर इन एपी, वो तीनों टर्म आपकी क्या होंगी, एपी में होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कि दिस इज योर लेट, दिस इज योर A1, दिस इज योर A2, दिस इज योर A3। सबसे पहले आप लेट कर लो, लेट A1 इक्वल टू A माइनस बी होल स्क्वेयर, A2 इज इक्वल टू A स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड A3 इज इक्वल टू A प्लस बी होल स्क्वेयर। दीज आर इन एपी। अगर आपको इनको एपी में प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे सबसे पहले, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 निकालेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, A स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, A स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस A माइनस बी होल स्क्वेयर। नाउ सोल्व फॉर A स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2AB, माइनस 2AB। नाउ A स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आ रहा है क्वेश्चन समझ में, माइनस माइनस प्लस 2AB, माइनस माइनस प्लस 2AB। नाउ सी, A स्क्वेयर कैंसल आउट विद A एंड B स्क्वेयर कैंसल आउट विद B। A स्क्वेयर आपका A के साथ कट जाएगा, B आपका B के साथ कट जाएगा एंड यू ओनली लेफ्ट विद 2AB, 2AB, 2AB। in the same way we will find out the difference between A3 and A2। now A3 minus A2, A3 minus A2 should be equal to A plus B whole square minus A square plus B square। Open the formula, that is A square plus B square plus 2AB minus A square and minus plus minus B square। Now A square cancel out with A square, B square cancel out B square, you will left only 2AB, you will left only 2AB। और यहाँ पे भी आपके पास में कॉमन डिफरेंस कितना आया था उन दोनों का, 2AB। कॉमन डिफरेंस नहीं, डिफरेंस 2AB आया था। कॉमन डिफरेंस तो जब हम तीनों की बात करेंगे तब बोल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब लिख दीजिए कंक्लूजन अपना, सिंस A2 minus A1, A2 minus A1 should be equal to A3 minus A2, A3 minus A2, A3 minus A2, so we can say that, the terms, the given terms are in AP, are in AP। जैसा कि हम बोल सकते हैं कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 है, so we can say that the given terms are in AP, hence proved, hence proved। Now next question, question number 9, find the sum of all 11 terms of AP whose middle term is 30। a very good question, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन आपका 2020 आउटसाइड दिल्ली में पूछा गया। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन को रीड कीजिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एपी हुज मिडल टर्म इज 30। आपके पास क्वेश्चन के अंदर सिर्फ मिडल टर्म दी गई है, मिडल टर्म हमें 30 दी गई है और हमसे पूछ लिया गया कि उस एपी के अंदर 11 टर्म्स है तो उन सभी 11 टर्म्स का सम बताइए। ठीक है, ए वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप मिडल टर्म निकालते हैं तो आप
उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप कैसे बता सकते हैं कि मिडिल टर्म्स 11 में से कौन सी होगी? वैसे तो कॉमन सेंस की चीज है, आपके पास में 11 आइटम है, तो आप 5 आइटम इधर लेफ्ट साइड छोड़ दो, 5 आइटम राइट साइड छोड़ दो, तो 10 आइटम हो गए। में जो आपका बीच वाला आइटम है वो आपका मिडल हो जाएगा, 5 इधर 5 इधर, मतलब 5, और जो मिडल वाला वो कौन होगा? आपका 6 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मिडिल टर्म्स कैसे निकालेंगे। 11 टर्म्स है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर, लेट कर लेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर एन इक्वल टू 11। हमें क्वेश्चन में 11 गिवन है, एंड 11 इज व्हाट? ओड। 11 क्या है आपके पास में? ओड है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 11, एक एपी के अंदर 11 है तो वो ओड है, तो मिडिल टर्म कैसे निकाल सकते हैं? मिडल मोस्ट, मिडल मोस्ट टर्म n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आता। मिडिल मोस्ट टर्म क्या हो जाएगी उस टाइम, अगर आपके पास में ओड नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड, तो मिडिल मोस्ट टर्म हो जाएगी आपकी n प्लस 1 अपॉन 2 अर्थ टर्म, 2 अर्थ टर्म। और यही मिडिल मोस्ट टर्म यहाँ पे क्या बन जाएगी? 11 प्लस 1 बाई 2 अर्थ टर्म। So means we can say that it will become 11 plus 1 2 12 by 2, that is sixth term, sixth term. And now this sixth term is equal to middle most term. According to question, middle most term is what? 30. Middle most term is 30. So we can say that, we can say that a sixth must be equal to 30। ये चीज आपको क्या है क्वेश्चन में गिवन है, इनडायरेक्टली ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है। जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मिडिल टर्म आपकी 30 है, इट मीन्स दैट, जैसा कि आपको मैंने बताया 11 टर्म है आपके पास में टोटल, 5 इधर छोड़ दो लेफ्ट में, 5 इधर छोड़ दो राइट में, बीच में जो सिक्स बच गई दैट इज यूर मिडिल टर्म, दैट इज 30th जो है आपके पास में, वो क्या आपकी मिडिल मोस्ट टर्म है। तो ये आपकी क्या बन जाएगी? ए सिक्स बन जाएगी 30, ए सिक्स क्या बन जाएगी आपकी? 30 बन जाएगी वहां पे। ठीक है, ए सिक्स 30 है, तो नाउ ए सिक्स कैन बी रिटर्न एज वट? ए प्लस में, ए प्लस में 6 minus 1 into d should be equal to 30. So we can write down a plus 5d, a plus 5d should be equal to 30, should be equal to 30। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है, और हमसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स। तो हम सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो नाउ यूज सम ऑफ एन टर्म्स, दैट इज एसएन n by 2 इंटू में 2a प्लस n minus 1 इंटू में d। नाउ हेयर एस एन गेट रिप्लेस विद 11, 11 by 2 इंटू में 2a, a इज a प्लस में n इज 11 माइनस 1 इंटू में d। बस आप इसको सोल्व कर लो। 11 by 2 इंटू में 2a प्लस 10d plus 10d, it will become 11 by 2, 2 taken as a common, 2 taken as common, you will get a plus 5d, a plus 5d, 2 cancel out with 2, 11 इंटू में a प्लस 5। अब ये देखिए a प्लस 5d आपका क्या है? a प्लस 5d की वैल्यू क्या है आपके पास? 30 है। नाउ दिस वैल्यू इज गेट रिप्लेस विद 30, सो योर फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 11 30 जा 330, 330 is your right answer, 330 is your right answer। ऐसा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है सीबीएसई बोर्ड के लिए। आपका 2024 में कभी भी आपका दोबारा रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन आपका।
और इस क्वेश्चन को एक स्ट्रेटेजी आपको मैं समझाता हूँ। अगर आपको एवरेज निकालना आता है, एवरेज निकालना आता है, जैसे कि आप एवरेज कैसे निकालते हो, मैं बोलता हूँ कि 5 नंबर्स की एवरेज आपके पास 10 है, 5 नंबर की क्या है एवरेज आपके पास 10 है, तो इसका मतलब क्या होता है बताइए। उनका टोटल कितना मिलेगा, 5 × 10 50। उनका टोटल क्या मिलेगा, 5 × 10 50 मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि 5 नंबर की एवरेज अगर ऑन एन एवरेज पांचों नंबर 10 है तो उनका सम कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। 10 10 10 10 10 मीन्स एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 10, देन टोटल सम मस्ट बी 5 × 10 50। तो यहाँ पे बस अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में होता तो ये वन लाइनर क्वेश्चन था। क्योंकि सोचिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एपी हुज मिडल टर्म इज 30। तो सोच के देखिए, आपके पास 11 टर्म्स है एपी की, और एपी में हमेशा जो बीच का नंबर होगा ना वही एवरेज होता है। यहाँ पे आपको पता है कि मिडल टर्म 30 है इस एपी की, तो ये 30 एवरेज ही है आपका। 11 टर्म्स का एवरेज 30 है, तो 11 टर्म्स का टोटल कितना मिलेगा, 11 × 30, 11 × 30, दैट इज 330। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो। अगर किसी बच्चे को पता है कि एपी सीरीज के अंदर जो बीच में नंबर होता है वही उस एपी सीरीज का एवरेज होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, very easy question. If the first 3 terms of AP are B, C and 2B, then find the ratio of B and C. B and C बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। हमें बोला गया है कि द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, एपी की 3 टर्म्स कौन है आपके पास में, एक बी है, एक सी है और एक 2B है। हमें पता है ये एपी में है और हमें रेशियो पूछ ली गई है बी एंड सी की। कुछ नहीं, कॉमन डिफरेंस लगा दीजिए, दैट इज सी माइनस बी, C minus B must be equal to 2B minus C. Now C आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, इट विल बिकम C plus C should be equal to 2B plus B. It will become 2C should be equal to 3B. We have to find out रेशियो B एंड C, मतलब कि हमें निकालना B बाई C। तो B को यहीं रख लो और C डिवाइड बाई में आ जाएगा और इधर आ जाएगा ये 2/3, 2/3। एंड फ्रॉम हेयर यू कैन से दैट B रेशियो C, B रेशियो C should be equal to 2/3, 2/3। A very easy question. This was last question of part 2 A सब पार्ट। इसके बाद आपको पार्ट 2B मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 कवर करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर CBSE board. Again, somewhere in video, if you get impressed by my approach to solve any question, please hit that subscribe button. Thank you all.